friends, how are you? Today we are going to study the second chapter of your English textbook, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Have you ever heard the name of this person before? This person is rightly called the Gandhi of Africa. He was greatly inspired by Mahatma Gandhi, and he had conducted a long struggle. Many years of his life were spent in prison. Nelson Mandela. So he did everything to free Africa from the clutches of the slavery. Long walk to freedom. Nelson Rolihlahla Mandela. Why Nelson Mandela had to fight? What made him fight? What kind of freedom he wanted? These all questions will be answered in this chapter. Very first thing I would like to talk is apartheid. Apartheid एक ऐसी सिस्टम होती है. It's a political system that separates people according to their races. मतलब हर इंसान को यहाँ अलग अलग देखा जाता है कि this belongs to separate race, this belongs to separate race, और उनको उस तरह से ट्रीट किया जाता है. So apartheid is a political system that separates people according to their races. Okay. ये सिस्टम कहाँ थी? तो ये सिस्टम थी साउथ अफ्रीका में. नेल्सन मंडेला एंड he was fighting for his African National Congress. He spent lifetime fighting against apartheid, and I told you that he had to spend 30 years in prison. क्या कभी सोच सकते हो कि इंसान अपने 30 साल जेल में गुजार सकता है अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने लिए नहीं. So he spent his very valuable 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. So whose government was there before this Nelson Mandela? So that was the government of white people. Why white people? We'll try to understand. In this extract from autobiography of Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a heroic occasion, the inauguration, means beginning. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from BBC of 10th May 1994. This date is very important for Nelson Mandela. 10th May 1994. Mandela becomes South Africa's first black president. So, when he became the first black president after more than 3 centuries of white rule, by the time he had spent 30 years in jail, in prison, white people were ruling in Africa. Mr. Mandela's African National Congress won 252 seats from 400 seats in the first democratic elections in South Africa history. पहली बार ऐसा हुआ था किसी पार्टी ने, वाइट के सिवा किसी और पार्टी ने, मतलब इनकी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 252 सीट्स 400 सीट्स में से जीती थी. So definitely he was going to come to power. The inauguration ceremony took place. इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी यूनियन बिल्डिंग amphitheater. Amphitheater मतलब open theater in Pretoria. It was on that day. This is the news of the BBC. Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries. Dignitaries मतलब important people. 140 देशों से वहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी आए हुए थे. और यहाँ नेल्सन मंडेला ने कहा था, Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. कोई भी इस देश का नागरिक आज के बाद कभी भी किसी को कोई क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं देगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा आज के बाद, सेल नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. Jubilant scenes, mean celebration scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. Who are these colored people? So we Indians are called colored people. There are some black people, they are completely well, extremely black people. There are some white people, they are extremely white, but we are somewhere in between, the shade between black and white. We are colored, we are called colored people. We are having different shades of the brown, some white, some black, but not completely black or not completely white. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. ये बहुत बड़ा फेस्टिवल था उनके लिए. 1 लाख लोग इकट्ठे हुए थे और अपनी आज़ादी की खुशी मना रहे थे, जैसे हम 1947 को 15 अगस्त को इंडियंस ने की.
10th May dawn means 10th May begin bright and clear for the past. Now this everything अब जो भी आएगा वो नेल्सन मंडेला के शब्दों में आएगा. For the past few days I had been pleasantly besieged. Besieged means surrounded by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब ये लोग मुझे यहाँ मिलने के लिए आते थे, रिस्पेक्ट करने के लिए आते थे. They were telling me the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला था. It was the largest gathering जो पहले नहीं हुआ था. इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स आने वाले थे. इसके पहले साउथ अफ्रीका पूरे वर्ल्ड से बैन था. उनकी क्रिकेट टीम भी किसी और कंट्री की क्रिकेट की टीम के साथ नहीं खेल सकती थी. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy. कई सालों से, कई दशकों से ये जो प्रिटोरिया था और ये अफ्रीका था, ये वाइट सुप्रीमेसी मतलब वाइट लोग यहाँ रूल कर सकते थे. Now it was the site of a rainbow gathering in different colors. अब यहाँ हर कलर के लोग थे, black, white, colored people, everyone. Different colors and nations for the installation of the South Africa's first democratic non-racial government. इसके पहले रेशियल गवर्नमेंट थी जो अपार्थाइड सिस्टम को सपोर्ट करती थी. ये पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब किसी भी रेस को इम्पोर्टेंस नहीं देने वाली गवर्नमेंट, ये अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. इनके साथ इनकी बेटी ज़ेनानी भी थी. On the podium, Mr. D. Clerk. He was first sworn in as the second deputy president. D. Clerk वहाँ के second deputy president थे. Then Thabo Mbeki. You can see this is the image of Nelson Mandela. अब first deputy president थे Thabo Mbeki. क्या नाम था? Thabo Mbeki. And Nelson Mandela आपको पता है कि वो president थे. तो एक सबसे पहले हमने देखा कि एक सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे और सबसे ऊपर थे नेल्सन मंडेला द प्रेसिडेंट. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people. जब मेरा टर्न आया तो मैंने कसम खाई कि मैं इस देश की संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा ओबे करूँगा, उसको हमेशा ऊपर रखूँगा और मेरा पूरा समय, मेरा सब कुछ इस देश के लिए मैं न्योछावर कर दूंगा. फॉर द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. दुनिया देख रही थी और गेस्ट भी थे. मैंने उनको कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. आज हम सब मिलकर इकट्ठे होकर हम इस जगह को, इस जगह के लोगों को, इस देश को जिसको न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब नई आज़ादी मिली है, उसको हम एक प्रतिष्ठा दे रहे हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. एक ह्यूमन डिजास्टर जो कई सालों से यहाँ चल रहा था. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमनिटी विल प्राउड. और अब यहाँ एक ऐसी सोसाइटी जन्म लगी जिसके लिए ह्यूमनिटी बहुत ही प्राउड फील करेगी. वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो. हम कई सालों से अभी तक इस पूरी दुनिया से अलग थलग हो गए थे. वी वर आउटलॉज इन द वर्ल्ड हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. अब पूरे वर्ल्ड के जो देश है वहाँ के लोग हमारे यहाँ हमारी सॉइल पे आ रहे हैं. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट. और जितने भी ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री. व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस. के वो लोग हमारे देश के साथ, लोगों के साथ बैठने के लिए यहाँ आए हैं. ये एक कॉमन विक्ट्री है हम सब लोगों की, जस्टिस के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए. वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. हमें आज़ादी मिली है. इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम मिली है, आज़ादी मिली है. वी प्लेज अवर सेल्स टू लिबरेट अवर पीपल. अब हम हमारे लोगों को आज़ाद करेंगे, गरीबी से आज़ाद करेंगे, डेप्रीवेशन से, उनके पास चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें हम उनको मुहैया कराएंगे, उनको दुख से आज़ाद कराएंगे, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन से उनको अलग करेंगे. अब उनके लिए लाइफ बहुत ही बढ़िया होगी.
never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी भी इस देश का एक इंसान अब किसी की क्रूअल्टी को सहन नहीं करेगा, कोई किसी पर क्रूअल्टी अब कभी नहीं करेगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. और इतनी बड़ी अचीवमेंट का जो सूरज निकला है वो कभी भी ढलेगा नहीं. Let freedom reign. हमेशा यहाँ फ्रीडम रहने दो. God bless Africa. अफ्रीका पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे. ये उनकी स्पीच थी. Then a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array. Means एक डिस्प्ले, बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल डिस्प्ले था आकाश में. साउथ अफ्रीकन जेट प्लेन्स वर फ्लाइंग. South African jets, helicopters and soldiers carriers roared in the perfect formation over the Union buildings. Union building पे V shape में ये अपना जलवा दिखा रहे थे. आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखा होगा कैसे हमारे प्लेन्स करतब दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर्स करतब दिखाते हैं. It was not only display of pinpoint precision, मतलब ये perfect precision था, minutely perfected precision था, and military force. बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी. मतलब मिलिट्री अब इस गवर्नमेंट को, इस डेमोक्रेसी को लॉयल थी. मिलिट्री किसी भी देश की उसकी गवर्नमेंट को लॉयल होती है. अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लॉयल थी टू अ न्यू गवर्नमेंट. अब ये गवर्नमेंट ऐसी थी जो फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड थी. मतलब इसमें कोई करप्शन नहीं था, जबरदस्ती कोई राजा नहीं बना था, जबरदस्ती कोई मिनिस्टर नहीं बना था. ये गवर्नमेंट लोगों की इलेक्ट की गई हुई गवर्नमेंट थी. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with the ribbons. कुछ समय पहले साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स और पुलिस ऑफिसर थे जिनके चेस्ट पे रिबन्स लगे हुए हैं, सजे हुए हैं, मेडल्स लगे हुए हैं, वो मुझे सैल्यूट करते थे और अपनी लॉयल्टी मुझ पर दिखा रहे थे. मुझे अभी भी याद है. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. कुछ साल पहले इन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया होता, बल्कि मुझे अरेस्ट किया होता. फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पेला मीन्स अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी जेट प्लेन्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. मतलब जेट प्लेन का जो पीछे के हिस्से में से धुआं निकल रहा था अलग अलग कलर का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. और ये सारे कलर्स थे न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के. मतलब ये सारे कलर्स दिख रहे थे आकाश में और आकाश पूरा जगमगा उठा था इन सब कलर से जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग की तरह दिखते थे आकाश में. द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर 2 नेशनल एंथम्स. इनकी 2 नेशनल एंथम थी, एक पुरानी एक नई. एंड द विजन ऑफ वाइट्स नकोसी सिकलल आई अफ्रीका. नकोसी सिकलल आई अफ्रीका मतलब होता है लॉर्ड ब्लेस अफ्रीका. एंड द ब्लैक सिंगिंग डाइस्टैम. डाइस्टैम का मतलब होता है द कॉल ऑफ अफ्रीका. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम. दोनों में से किसी ग्रुप को एक दूसरे की एंथम के बारे में पता नहीं था. एक बार वो नफरत करते थे, पर अब उसको लर्न कर लेंगे थोड़े ही दिन में, इस नई और पुरानी दोनों नेशनल एंथम्स को. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. मतलब मुझे हिस्ट्री याद आ गई उस दिन. मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ गई. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, Anglo-Boer War हुआ था ब्रिटिशर्स के बीच और साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक और ऑरेंज फ्री स्टेट के बीच हुआ था. एंड दैट वॉज बिफोर माई बर्थ. White-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. यहाँ के वाइट स्किन वाले जो लोग थे वो लोग ने अपने डिफरेंसेस दूर कर दिए और इन्होंने जो डार्क स्किन वाले मतलब काले लोग थे उन पर डोमिनेट करने के लिए अपनी गवर्नमेंट बना दी. अब आपको यहाँ एक वर्ड अजीब लगता होगा, पीपल्स. हमें लगता है कि पर्सन सिंगुलर, पीपल प्लूरल हैं, तो पीपल का भी हाँ. जब बहुत सारे पूरे देश के लोगों की बात होती है तो हम पीपल्स एज ए प्लूरल यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ अ करेक्ट वर्ड. सो द वाइट स्किन पीपल्स नाउ डोमिनेटेड ऑन द dark skinned peoples of South Africa of the own land.
The structure they had created from the basis of one of the harshest, सबसे खतरनाक, सबसे अमानवीय, inhuman societies बनी थी हमारे पर, इतने जुल्म हो गए थे. Now in the last decade of the 20th century, in my own 8th decade as a man, I am in the 8th decade, means I have completed 8 years, that system had been overturned forever. और वो सिस्टम को, अपार्थाइड सिस्टम को हमने हमेशा के लिए उखाड़ के फेंका है. And replaced by one that recognize the rights and freedoms of all people. और एक ऐसी सिस्टम है जो लोगों के राइट्स देती हैं, लोगों को फ्रीडम देती हैं. कोई भी कलर के हो, वाइट हो, ब्लैक हो, कलर्ड हो, हम सबको आज़ादी देना चाहते हैं. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. और ये आज़ादी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे बलिदानों के बाद हमें मिली थी. जैसे भारत में भी हमें कई लोगों की बलिदान के बाद ये आज़ादी मिली थी. People whose suffering and courage can never be counted or repaired. उन लोगों का जो दुख था उसको हम रीपे नहीं कर सकते, वापस नहीं लौटा सकते. मुझे आज भी याद है, I felt that days I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Actually मुझे कई बार ऐसा लगता था, जितने भी अफ्रीकन देश प्रेमी थे उन सब का मैं टोटल था. मुझे आज़ादी के लिए बहुत दीवानगी थी, मुझे आज़ादी किसी हालत में भी चाहिए थी. That long and noble line ended and now began again with me. वो एक नोबल लाइन ख़त्म हो गई थी और मुझसे वो फिर से शुरू होने जा रही थी. I was pained that I was not able to thank them. मुझे दुख हुआ कि मैं उनको अब थैंक यू नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी किया हमारे देश के लिए किया. That they were not able to see what their sacrifices had wrought. उनके बलिदानों ने क्या नई कहानी लिखी थी, ये देखने के लिए अफसोस वो मौजूद नहीं थे. हमारे भी ऐसे कई लोग थे, जैसे शहीद भगत सिंह, और ऐसे कई लोगों ने बलिदान दिए थे. वो आज़ादी के इतने दीवाने थे कि उनको किसी भी कीमत पर आज़ादी चाहिए थी. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. अपार्थाइड पॉलिसी ने मेरे देश के लोगों में और मेरे देश पर एक ऐसा घाव दिया जो कभी भर नहीं सकता. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. इतने बड़े घाव में से उबरने के लिए हमें बहुत वक्त लगेगा, ये जल्दी नहीं उबरेगा. But the decades of oppression, मतलब वो जुल्म के जो डेकेड्स थे और जो क्रूअल्टी थी जो एक दूसरे पर लोग दिखाते थे, अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ऑलिवर टेम्बोस. और उसकी वजह से, इस ऑपरेशन मतलब इस क्रूअल्टी की वजह से, इस जुल्म की वजह से हमारे देश ने बहुत सारे देशभक्त पैदा किए. उनमें थे कुछ थे ऑलिवर थैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लिथुलस, द यूसुफ डाडोस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेस ऑफ आवर टाइम. इतने सारे लोगों ने देश के लिए बहुत काम किया. मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू कैन सी दैट फेसेस हियर, ऑलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ डैडो, ब्रैम फिशर्स एंड रॉबर्ट सोबुक्वे. आपको लगता होगा ये इनके नाम के आगे वो पैराग्राफ में एस क्यों लगा है. एक्चुअली कई सारे ऑलिवर टेम्बोस ऐसा बताएगा, मतलब इनके जैसे लोग तो हमारे भी कई जैसे, देयर वर मेनी गांधीज लाइक मेनी पटेल्स लाइक दैट, हियर दे हैव यूज्ड. दे हैड अ ग्रेट करेज. इन लोगों के पास बहुत करेज था, विजडम था, जनरसिटी थी. शायद वो हमें कभी अब देखने नहीं मिले. Perhaps it requires such depths of oppression, मतलब इतना जुल्म होता है तभी इतने महान लोग पैदा होते हैं. My country is rich in minerals and gems. मेरे देश में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जेम्स मिलते हैं, खजाना है, हीरे मोती जवाहरात मिलते हैं, पर इसके सबसे बड़ी वेल्थ इसके लोग हैं. इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. और ये जो लोग थे ये इतने फाइन थे और इतने सच्चे थे कि शायद ये डायमंड से भी सही थे, डायमंड से भी प्योर थे. इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब साथ में लड़ने वाले, मेरे साथीदार, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न दैट मीनिंग ऑफ करेज. मुझे करेज का मीनिंग इन लोगों से पता चला. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. कई लोगों ने, मैंने कई बार देखा है, मैन वीमेन वो लोग एक आइडिया के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग.
कई लोग जुल्म के सामने खड़े हो जाते हैं, कुछ भी टॉर्चर करो, कुछ भी अटैक करो, हमें कुछ नहीं होगा. शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस. रेजिलियंस मीन्स द एबिलिटी टू अपोज, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, दैट गोज बियॉन्ड द इमेजिनेशन. हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा वो ताकत दिखाते हैं. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट ए एब्सेंस ऑफ फियर. करेज का मतलब हरगिज ये नहीं होता है कि आपको डर नहीं लगता है, बट द ट्रिम फॉर. करेज का मतलब तो ये होता है कि आप उस पर काबू कर लेते हो, आप उसको जीत लेते हो. डर तो सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है, लेकिन उस डर पे काबू करना, उस डर को कंट्रोल में करना, उस डर पे काबू पाना, ये सबसे बड़ी जीत होती है. द ब्रेव मैन इज नॉट द ही हू डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर वो नहीं है कि जो घबराता नहीं है, बहादुर वो है जो उस डर को जीत लेता है. हु कॉन्कर्स दैट फियर. कॉन्कर्स मतलब जीत लेना. जो डर को जीत लेता है वो सबसे बड़ा बहादुर इंसान है. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. दुनिया में कोई भी आदमी पैदा होने के साथ किसी और को उसके स्किन की वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से और उसके रिलीजन की वजह से नफरत करने नहीं लगता है. उसको सिखाया जाता है कि इन लोगों से नफरत करो, इन कलर वाले लोगों से नफरत करो, इनसे नफरत करो, उनसे नफरत करो. ये सबको सिखाया जाता है. बच्चा कुछ सीख के नहीं आता. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. अगर लोगों को नफरत सिखाई जा सकती है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. वी कैन टीच देम टू लव ऑल्सो, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट. मतलब लोगों को प्यार करते हुए सिखाना आसान होता है नफरत से, बिकॉज लव कम्स नेचुरली टू एनीवन्स माइंड. Even in the grimmest, means even in the saddest times in prison, when my comrades and I were pushed our limits, मतलब हम पे सारे जुल्म हो रहे थे. जेल में जब हम बंद थे, कई बार मुझे दिखता था, I would see a glimmer of humanity. ग्लीमर मतलब स्लाइटली शाइन दिखाई देती. गार्ड्स में, एक गार्ड्स में मुझे थोड़ी भी ह्यूमैनिटी, मानवता दिखाई देती थी, एक सेकंड के लिए भी. तब मुझे पता चला, मुझे रीअश्योरेंस हुआ कि मैं ये लड़ाई लड़ सकता हूँ. इंसान की अच्छाई एक ऐसी ज्योत है जो छुप तो सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती. मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन. उसको हम छुपा सकते हैं पर उसको हमेशा के लिए बुझा नहीं सकते. किसी भी इंसान के दिल में आप भलाई और प्यार कभी भी पैदा कर सकते हो. इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. हर इंसान की जिंदगी में दो ऑब्लिगेशंस मतलब दो रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो जवाबदारी होती है. एक तो ऑब्लिगेशन होता है उसकी फैमिली का, उसके पेरेंट्स का, उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का, और दूसरा होता है उसके लोगों का ऑब्लिगेशन, उसके समाज के प्रति उसकी जवाबदारी, उसके देश के प्रति उसकी जवाबदारी, उसके कम्युनिटी के प्रति जवाबदारी, उसके देश के प्रति. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन एंड इंटेलिजेंस एंड एबिलिटीज. एक अच्छी सोसाइटी में इंसान अपनी दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ऑब्लिगेशंस को अच्छी तरह से अदा कर सकता है. वो दोनों ही ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है. अपनी फैमिली के लिए भी वक्त दे सकता है, अपनी फैमिली के लिए भी काम कर सकता है और अपनी सोसाइटी या देश के लिए भी. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन और माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस. मेरे जैसे इंसान के लिए साउथ अफ्रीका में दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना मुश्किल था. क्यों मुश्किल था? इम्पॉसिबल था. क्या था? इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी ब्लैक पर्सन अगर अच्छी तरह से जीने की कोशिश करे एज अ ह्यूमन बीइंग तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी या उसको अकेला जेल में बंद कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट. साउथ अफ्रीका में कोई भी आदमी अपने फैमिली के प्रति, अपने लोगों के प्रति अगर अपनी ड्यूटी अदा करना चाहे तो उसको ज़बरदस्ती उसकी फैमिली से उसको अलग कर दिया जाता था, रिप्ड ऑफ फ्रॉम हिज फैमिली, और उसके घर से दूर कर दिया जाता था और एक अकेली ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था. अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रेबेलियन मतलब अकेलापन, एकदम अकेला, अंधेरे में, एकदम सीक्रेट लाइफ, और उसको रेबेलियन मतलब अपोज करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चोज टू बी प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. पहले शुरुआत में
मैंने मेरे लोगों के बारे में नहीं सोचा, मेरे फैमिली के बारे में सोचा। मुझे तब इतनी समझ नहीं थी। आई बिगिनिंग टू चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैं पहले नहीं सोचता था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जब मैं अपने लोगों को सर्व करने गया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन। कि जब मैं लोगों की सेवा करने गया, तब मैंने देखा कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सन थी, एज ए ब्रदर थी, और एज ए फादर, एज ए हस्बैंड थी, वो मैं पूरी नहीं कर सकता था। भारत में भी आज़ादी के समय कई लोग अपनी फैमिली से दूर रहे थे, कई सालों तक दूर रहे थे। गांधी जी भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ये पूरे देश के लोग मेरा फैमिली है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। मैं जब पैदा हुआ था तो मुझे आज़ाद होने की कोई भूख नहीं थी। मुझे पता नहीं था, मैं लगता था मैं तो फ्री ही था। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मेरी माता जी की जो झोपड़ी थी, वहाँ खेतों में खेला करता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मतलब मैं झरनों में स्विमिंग करने जाता था, दैट रेन थ्रू माई विलेज। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स। मैं मेज मतलब मकाई पकाता था अपने खेतों में जाकर, और एंड राइड ऑन द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। बुल्स के ऊपर बैठ के मैं आराम से घूमता था। मतलब मैं सारी मस्ती करता था, मुझे पता नहीं था मैं आज़ाद था या नहीं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाय कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैंने अपने पापा को ओबे किया और हमारी ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो किया, मुझे मैन और गॉड के जो भी रूल्स थे उसके बारे में पता नहीं था, और मुझे परेशानी भी नहीं था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken for. मुझे बाद में पता चला कि मेरी जो बचपन की जो आज़ादी थी उसको छीन लिया गया है। वो एक मेरा भ्रम थी, वो एक इल्यूजन था। बचपन में आज़ाद था, वो बड़े होकर वो आज़ादी नहीं मिलने वाली थी। मैंने डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन। मुझसे मेरी आज़ादी तो बचपन से ही छीन ली गई है। एंड आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। अब मुझे उस आज़ादी की भूख लगी। आई वॉज हंग्री। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम टू बी माई सेल्फ। एज ए स्टूडेंट मेरी कुछ अलग सोच थी, मैं कुछ अलग तरह से सोचना चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब रात को बाहर निकलने की जो आज़ादी थी, किसी के दूसरे के अपने दोस्त के घर जाने की आज़ादी थी। रेड व्हाट आई प्लीज टू गो, मैं जो पढ़ सकूँ वो आज़ादी, और जहाँ मैं जा सकूँ ऐसी आज़ादी। इसमें से कोई आज़ादी मुझे नहीं मिली। ना किसी के घर पे जा सकता था, ना अपनी पसंद की बुक पढ़ सकता था, ना जहाँ मुझे पसंद हो उस जगह पे जा सकता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। मुझे थोड़ी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स चाहिए थी, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मतलब मेरी शक्तियाँ हासिल करने के लिए, कि मैं कमाऊँ कुछ पैसे और मैं अपने पास रख पाऊँ। मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, मैं मैरिज कर सकूँ और मेरा एक फैमिली हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, मतलब ऐसी आज़ादी हो कि मैं आराम से अपनी ज़िंदगी एक अलग कानून से जी सकूं, और मेरी आज़ादी कोई छीन लाने, मुझे यह डर लगता था। बट देन स्लोली आई सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री। बाद में मुझे पता चला कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं था, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल्सो नॉट फ्री। मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं थे। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टल। सिर्फ मेरी फ्रीडम ही रिड्यूस नहीं की गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। ऐसे हर आदमी की फ्रीडम छीन ली गई थी कि जो मेरी तरह से आज़ादी को देखता था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम ग्रेटर। मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, एंड देन माई हंगर बिगेन। व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. हमारे लोगों की एक इच्छा थी कि उनको आज़ादी मिले, वो अपनी लाइफ एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट के साथ जी पाए, और उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। इन सब चीज़ों ने मेरी लाइफ बदल दी। दैट एनिमेटेड माई लाइफ। एनिमेटेड मतलब बदल देना। ये सब लोगों की इच्छाओं ने मेरी लाइफ को बदल दिया। That transform a frightened young man to a bold one. एक डरा हुआ जवान एक बोल्ड जवान बन गया। मतलब
मैं बहादुर बन गया, आई बिकेम बोल्ड। पहले मैं डरा हुआ था, अब मैं बहादुर बन गया। एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी से एक क्रिमिनल बन गया, मतलब कानून का पालन करने वाला एक वकील एक गुनहगार बन गया। अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक फैमिली को चाहने वाला इंसान एक घर बार बिना का आदमी बन गया। अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक जिंदगी को चाहने वाला इंसान एक सन्यासी बन गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, मैं किसी और इंसान से ज़्यादा वर्चुअस मतलब गुणों वाला या तो ज़्यादा बलिदान देने वाला इंसान नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। मुझे छोटी छोटी आज़ादी भी नहीं मिलती थी, लिमिटेड फ्रीडम भी नहीं मिलती थी। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। आई कुड नॉट एन्जॉय, मुझे छोटी आज़ादी भी मैं एन्जॉय नहीं कर पाया जब मुझे पता चला कि मेरे लोग फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम इंसान से कोई अलग नहीं कर सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम। मेरे कुछ भी लोगों पे, एक इंसान पे भी शायद वो चेन थी तो वो सारे लोगों पर थी। मतलब अगर एक इंसान भी आज़ाद नहीं था तो सब आज़ाद नहीं थे। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जो चेन्स मुझ पर थी, जो चेन सब लोगों पर थी वो मुझ पर थी। तो ये सारी आज़ादी की मुझे चिंता थी, क्योंकि ये गुलामी की बेड़ियों से मुझे अपने देश के लोगों को, अपने लोगों को आज़ाद कराना था। और ये चेन्स मुझे तोड़नी थी, ये गुलामी की जंजीरें मुझे तोड़नी थी, मुझे आज़ाद होना था। क्योंकि एक इंसान पर भी जो चेन थी वो सारे लोगों पर थी, और जो सारे लोगों पर जो चेन थी वो मुझ पर थी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर, ऑपरेसर मतलब जुल्म करने वाला, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली इज ऑपरेस्ड। जुल्म करने वाला भी एक मानसिकता का शिकार होता है, उसको भी आज़ाद करना जरूरी है। वो इतना ही रिस्पॉन्सिबल है जिस पर जुल्म होता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन लेता है वो भी एक नफरत का शिकार है, उसे लोगों से नफरत है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस, वो अपनी सोच का शिकार है, अपनी पुरानी गंदी सोच का शिकार है। और उसके नैरो माइंडेडनेस मतलब उसकी जो सोच है वह छोटी सोच है, वो छोटी सोच का शिकार है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी की आज़ादी छीन लेता हूँ तो मैं खुद आज़ाद नहीं हूँ अपने विचारों से। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, ऐसा ही मैं इंसान होऊंगा कि आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। मैं ऐसा ही हो जाऊंगा कि जैसे मेरी आज़ादी किसी ने छीन ली हो। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर लाइक रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो जुल्म करता है और जिस पर जुल्म होता है दोनों इंसानियत से अलग हो जाते हैं, उनकी इंसानियत उनसे छीन ली जाती है। मतलब इंसानियत को अगर हमें फिर से अफ्रीका में लानी है तो ये सब जुल्म हमें बंद करना पड़ेगा। और इसी के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, और ये दिन मुझे आज देखने के लिए मिला कि अफ्रीका को एक नई डेमोक्रेटिक ब्लैक नॉन रेशियल गवर्नमेंट मिली और उसका मैं प्रेसिडेंट था। सो दिस वाज ऑल द स्टोरी ऑफ योर अफ्रीका's favorite leader Nelson Mandela, who was greatly inspired by our father of the nation Mahatma Gandhi, and he gave a great fight against the oppressors of his country, and he made his country free from all kind of oppression, and it was a great event for Africa also. They can never forget this day, and we also can never forget his victory. So this was all about Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Bye for now. I am your English coach Sandeep sir. Will meet in the next lecture with the next chapter. Bye for now.